You can save taxes and these are illegal. So legally you can save taxes. There are many ways. Illegally फंसेगा. And इस पे तो डॉक्यूमेंट्री भी अगर आपको देखना रहेगा ना, किस पे? एनरॉन पे, नेटफ्लिक्स पे है या यूट्यूब पे भी फ्री में है. नाम है एनरॉन, द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम. तो कभी टाइम मिले लिखना एनरॉन स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम. मूवी है क्या? मूवी डॉक्यूमेंट्री. आपके क्लास में से भी डॉक्यूमेंट्री मत दो. नहीं है उसमें. डॉक्यूमेंट्री यू नो ना. बहुत मन हो गया देखने आज होगा होगा ही नहीं होगा ही घर जाके जाके चलो. So there are so many good movies based on these stock market scams and financial frauds. There is one more called नाम हटा गया. बॉयलर रूम करके मंडे को भी होगा boiler room and then there are many. दो अभी मेरे को याद आ रहा है. Tell you the list. तो कभी टाइम मिले तो देखना. This is on the subprime crisis 2008-9 में जो हुआ था ना उसके ऊपर. So all these crises you should see. तो आपको पता चले एक्चुअल काम कैसे होता है इंडस्ट्री में. Now coming back to this. Write purchase and sales journal and return journal in the books of Shri Pawar. Okay, the subsidiary books of Shri Pawar. First one, supplied goods to AN company as per their order 2000. तो क्या लिखने का इधर? AN company, simply AN company 2000 and date is 1st Jan 2011. Bought goods from RN company 1200 less 10% TD. तो आई थिंक परचेज बुक में आएगा RN कंपनी TD माइनस करना है कि नहीं. तो 1080. दिस इज ऑन 5th of January. ओके. बॉम्बे फर्नीचर वर्क सप्लाइड फर्नीचर एज पर देयर ऑर्डर. वो कौन से रूप में जाएगा? जर्नल प्रॉपर. सो इट्स बेटर इफ यू मेक अ जर्नल प्रॉपर. इधर नोट्स में डालने के बदले हाँ इतना भी है सब पढ़ा. What is the format of journal proper? Same as journal. Okay, same as journal. Date, particular कैश बुक नहीं बनाने का. Only journal proper. कैश बुक के लिए नोट. Only journal proper you make. कैश बुक के लिए यूज गूगल है. ये नहीं आगे भी है. कैश परचेज कैश सेल्स कैश. हाँ तो एक ही है तो एक के लिए बनाओ. नोट में कैश बुक बनाने का नहीं. कैश बुक के लिए नोट एंट्री है. परचेज टू कैश नोट में कैश. जेपीयू में उसका नोट मत लिखो. सब्सिडी के साथ मेक जेपी. This is what is the entry for furniture for? Furniture to Bombay Furniture Work. It is on credit. Okay. Furniture to Bombay Furniture Work. 5,000. Next page. This is being furniture purchased on credit. Being furniture purchased on credit. नोट में कैश वाले नोट में डालना. बट ये चार और जीपी साथ में. इस टॉपिक में यू हैव 4 सब्सिडी एंड जीपी. नेक्स्ट में यू हैव कैश बुक, देन यू हैव पेटी कैश. उसको अलग रखो. क्या नरेशन ना रखे हो कल से? नरेशन लिखना है.
The Big Short. That movie I was talking. देखा है The Big Short. सुपर मूवी, ब्रिलियंट. क्रिश्चियन बेल है इसमें, ब्लैकमैन वाला ही. बहुत मस्त है. उसमें समझा नहीं रहेगा तुमको इतना. फाइनेंस का बहुत जार्गन है, ऊपर से क्या आएगा. 1-2 साल बाद देखना. सीए एंटर करने के बाद देखोगे ना, यू विल लव दिस. द बिग शॉट. चलो, रियल लाइफ इंसिडेंट बेस्ड. नेक्स्ट वन, बॉम्बे फर्नीचर वर्क्स. क्लियर है? अभी डेट है ना, नेक्स्ट 21st नहीं है, 12 है. सोल्ड गुड्स टू बीएन कंपनी ऑन क्रेडिट. विच बुक? सेल्स बुक. This is 650. Okay. Date is 12. Bought goods from Y&M Company less 20% TD. So Y&M Company 1500 less 20%. 1200. Date is 14. Then send a debit note. Which book? Purchase returns. Send a debit note is purchase returns. Y&M Company. Value is 100. Is it clear? Send a credit note. A&M Company. Sales returns. Received an invoice. Purchase book. Send a credit memo. Credit memo is what, guys? Is credit memo and credit note one and the same? That is invoice. That is note. So credit memo. C&M Company. That is 1600. Okay. Cash sales, cash purchases will record in cash book. So write a note for that. Transaction लिखते थे ना आप लोग इसमें 11th on नोट बनाना कि चेक पे डाल. no note 26 and 29 are cash purchase and cash sales will be recorded in cash sales and cash purchase will be recorded in cash book. 1 minute, बताओ ना. कैश से कैश परचेज नोट में डाल दो. नो जेपी नीडेड. ठीक है. देन सप्लाइड गुड्स टू M&M Company. Which book? Sales book. 700. This is on 30th. Bought goods from M&M Company. Which book? Purchase book. 800. Is this clear? M&M Company sent a credit note. So we received a credit note, we sent a debit note. So purchase return. This is 50. Send a credit note to M&M Company. M&S नहीं है. M&M Company. It is correction कर लो. It is M&M Company, the last one, not M&S. M&M Company. It's M&M Company. I think last में क्या करना है इसमें पता है आपको? टोटल. Yes. Other total. 54. Okay. आगे पूछा है कि post them into ledgers. You see them? Post them into ledgers. So when they ask you ledgers in subsidiary books, ideally you are supposed to make all. In what sense all? You have to make purchase account,
Ideally, you have to make all the ledger accounts. Ideally, you are supposed to make all the ledger accounts. You have to make purchase account, you have to make sales account, you have to make returns account. You also need to make all the parties account individually. You also need to make इधर फर्नीचर है, इधर कुछ बॉम्बे फर्नीचर है, उसका भी इतना सब बनाना पड़ता है, बट इतना लेंदी सम आने वाला नहीं. सो फुल ब्लेंडेड सम में अगर लेजर पूछा जाए तो वी जस्ट मेक 4 अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स. एक ही साइड में चारों बना दो. सर वो आधा पेज बचा है, नोट वाला उसमें ही बना दे. सर नोट वाले आधे पेज एक साइड पे ट्राई करो. हाँ, 4 लेजर्स है, ड्रॉ कर लो. सेम फॉर्मेट ऑफ नॉर्मल लेजर. सी हमने कल ही लेजर बनाया था परचेज का, और ये भी परचेज का अकाउंट है, लेकिन दोनों में फर्क है. क्या फर्क है आपको अभी पता चलेगा. सॉरी, हाँ, संदरी क्यों आएगा? कैश वाला अलग और डिस्काउंट वाला अलग. सर बता रहा हूँ, बता. करेक्ट, कैश और डिस्काउंट अलग से. अभी सुनो ध्यान से. हाउ डू वी पोस्ट द एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स इन दिस टाइप ऑफ लेजर. लिसन, नॉर्मली तो क्या होता है, समझो कैश परचेज है तो एंट्रीज परचेज टू कैश. तो क्या होता है, कैसे करते हैं, परचेज बाय टू कैश में बाय परचेज. परचेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड है तो कैसे करोगे, परचेज बाय टू डिस्काउंट रिसीव में बाय परचेज. तो एंट्री परचेज टू अजय, कल क्या था, परचेज बाय टू अजय, अजय में बाय परचेज. बट जब हम सब्सिडरी बुक से ये बनाते हो लेजर, तब 2 पोस्टिंग सेम है. समझो कैश परचेज है, सर्च इन द सम वीडियो हैव एनी कैश परचेज. देयर वाज वन ऑन 29, उसका नॉर्मल पोस्टिंग करने का. परचेज में टू कैश अकाउंट कितना था वो, 800, और डेट 29/1/11, जैसे नॉर्मली करते हो वैसे. अच्छा, परचेज टू डिस्काउंट रिसीव था प्रॉब्लम में, होता तो वो भी नॉर्मली करने का. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट परचेज, इन सबका एंट्री सेम है. मतलब इट इज व्हाट, परचेज टू आर, परचेज टू वाई, परचेज टू जेड, परचेज टू एन, वही है. तो वापस से नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नाम आपने ऑलरेडी परचेज बुक में लिखा हुआ है. तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, सीधा टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक. ये अकाउंट नहीं है. सन्ड्रीज मीन्स व्हाट, सीधा टोटल लिख रहे हो आप, एक साथ चारों का पोस्टिंग कर दिया. गॉट इट. क्यों वापस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं परचेज टू आर, परचेज टू आई, परचेज टू जेड, परचेज टू एन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नाम लिखा, डिटेल्स ये तो यहाँ से लिखो. तो लेजर में आप सीधा टोटल लिखते हो. टू अकाउंट में क्या लिखते हो, टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक. एंड माइंड यू, ये खाली मैनुअल अकाउंट में पॉसिबल है. टैली वाली में तो नाम ही आएगा, समझा. कंप्यूटर में तो नाम ही आता है, उधर कोई फ्रेज नहीं लिख सकते आप. बताओ, इज इट क्लियर.
It is always going to be the name of the account. So purchase 2222. What is this total? 5480. This is on 31/1/11. सीधा लास्ट डेट पे टोटल मार देने का. तो हाउ टू पोस्ट? कैश परचेज का अलग, डिस्काउंट रिसीव का अलग एंड क्रेडिट वाला टोटल साथ में. समझा? हेलो, इसको करो बंद. 6280 आ रहा है और सीधा कर लेने का बैलेंस बाय बैलेंस. हाँ, ये टोटल लास्ट डेट, मंथ का लास्ट डेट और फिर बैलेंस खत्म. सर टू बैलेंस लिखा तो भी चलेगा. That's okay. सेल्स में बाय सन्ड्रीज आएगा ना. Sorry. सेल्स में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक ना. अभी सेल्स में देखो, पहला बाय कैश देख लो. कैश सेल्स है क्या? पहले वो खत्म करो. कैश सेल है, डिस्काउंट अलाउड है तो अलग से करो पहले. तो कैश सेल का क्या होगा? कैश टू सेल. तो बाय कैश कितना है? 600 है. मिला? इसका डेट वाइज जानना है. नॉर्मल बाय डिस्काउंट अलाउड है. क्रेडिट के लिए मिला है. राइट द नेम्स ए बी सी एम. नहीं, बाय क्या? sundries as per sales book. Buy sundries as per sales book. I think it is 4950. सीधा टोटल 4950. 31. सर 31. Balance last date 31/1/11. This is to balance sheet. 5550. That's it. 5550. Understood? Okay? समझ रहे हैं? तो कैश वाला और डिस्काउंट वाला अलग अलग, क्रेडिट वाले के लिए सन्ड्रीज है. परचेज रिटर्न में कुछ कैश दिख रहा है तो सीधा क्रेडिट सी है. तो परचेज रिटर्न में कौन से बाजू लिखो? बाय. ठीक है, पार्टी टू परचेज रिटर्न. तो बाय पार्टी की जगह बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक. सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक एंड द टोटल इज 150. डेट इज लास्ट डेट. इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी. खत्म. एंड सेल्स रिटर्न में क्या आएगा? टू सन्ड्रीज. क्योंकि कैश वाला नहीं है ना, होता तो लिख देते. कैश वाला नहीं है तो टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 225 लास्ट डेट. एंड दिस इज बाय बैलेंस सीडी 225 31/1/11. Is this clear? That's how you post them in the ledger individually. बेटा दिमाग में पोस्टिंग. कैश वाला डिस्काउंट वाला अलग अलग, जो क्रेडिट वाला उसके लिए टोटल, सीधा टोटल. Is this clear? तो सन्ड्रीज वाला दैट इज नथिंग बट टोटल ऑफ क्रेडिट पार्ट. क्यों किया? क्योंकि बुक्स में ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है. अभी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि सीए पेपर्स में है ना, कभी ऐसा सेट नोशन लेके मत जाना कि वही टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और सेम चीज सॉल्व करनी है. ओके, मतलब फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट ही आएगा या रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ही आएगा. ऐसा कोई सेट चीज नहीं है. आपको फाइनल अकाउंट में बोलेगा खाली बैलेंस शीट बनाओ, खाली ट्रेडिंग बनाओ, खाली पीएनएल बनाओ. आपको रेक्टिफिकेशन में बोलेगा खाली सस्पेंस अकाउंट बनाओ. एंट्री चाहिए नहीं, सब रफ में करो, वर्किंग नोट में करो. So in CA questions always read the head of the question properly. What have they asked? जो पूछा है पेयर में वही बनाने का मार्क्स उसी का है. बाकी वर्किंग नोट जरूरत पड़ा तो अच्छे से बना देने का, वर्किंग नोट का भी मार्क्स है. बट जो नहीं चाहिए वो बना के आने की जरूरत आड़ा जगह सेट फॉरवर्ड में जाने का. तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. ओके,
जो पूछा है फेयर में और उससे रिलेटेड जो जरूरत है वो वर्किंग नोट अच्छे से बनाना, सिंपल। सो क्वेश्चन 2 देखो अभी सब लोग, क्वेश्चन 2 रीड करो, और अभी रीड क्वेश्चन 2। क्या पूछा है देखो, ट्रांजैक्शन तो दिया है, पीछे देखो क्या पूछा है। प्रिपेयर परचेज बुक मिला एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, ऊपर ही दिया, सॉरी फर्स्ट लाइन पे, मेक परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो ओनली परचेज बुक, नीड टू मेक ओनली परचेज, बाकी सबका ट्रांजैक्शन भी नहीं है, बनाए कि नहीं? नहीं, खाली परचेज बुक ड्रॉ करना, बच्चे को ड्रॉ करे ना, बस परचेज बुक ड्रॉ करो, आधे साइड का ड्रॉ करो, ये एक ही पेज में आ जाएगा। आधा साइड। लेजर भी बनाना पड़ेगा। लेजर खाली परचेज अकाउंट नहीं, परचेज प्लस पार्टी और फ्रेड भी है, तो फ्रेड अकाउंट में बने 5 ये है। account में सर तो अभी इसमें चारों ये सब्सिडियरी बने और जर्नल प्रॉपर भी बने, तो अभी इसमें सिर्फ परचेज बुक पूछा तो जर्नल प्रॉपर भी नहीं है। जनरल पेपर इज अ वर्किंग, यू कैन शो इट एज अ वर्किंग, ओके, बट बाकी कोई कुछ नहीं है, उसका एंट्रीज भी नहीं रहेगा। लेजर में परचेज ट्रेड और पार्टी। लेजर में बता दूंगा, आई मत करो, खाली परचेज बुक रहा। journal proper of purchase. जेपी आया तो बनाने का, यस। See now. Read the word. Listen. First one देखो. Purchase from Ajay Enterprises Delhi. Rexons हवाई चप्पल of at the rate of 120 per dozen and 200 bulky leather चप्पल at 300 per dozen. Trade discount is 10%. Freight charge is 150 rupees. अभी पहले तो परचेज बुक है, डेट क्या है 4th of April, नाम क्या है अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली, ओके। अच्छा अमाउंट क्या आएगा, तो इधर ही है ना, आप इसका डिटेल दिखा सकते हो गुड्स का, अगर दिया है ना शो द डिटेल ऑफ गुड्स, नहीं दिखाया तो चलेगा, बेटर है कि दिखाओ, क्योंकि अगर 4 मार्क के लिए यही पूछा है